Hello friends, welcome once again to my channel Smita Classes. As you know that we are dealing with the science book of standard 7. The name of the book is Future Kids Science, and we were dealing with the 9th chapter, which is respiration in organisms. We have already done 2 parts of that chapter, and today we will be doing the 3rd part, and we will start from we have done lung capacity and breathing rate that we have completed, and then we will start from take care. Take care, sneezing. We should always breathe through nose and not from mouth. The air around us contains dust particles, smoke, pollen, and scrub. When we inhale, the dust particles get stuck in the hair present in the nose, which acts as filters. However, sometimes these particles irritate the lining of the nasal cavity, as a result of which we sneeze, and the dust particles are removed from the inhaled air. So when we sneeze, we should cover our nose so that the foreign particles we expel are not inhaled by other person. Smoking. Smoking damages lungs and can cause lung cancer. Smoking is injurious to health. 2 types of respiration: aerobic respiration and anaerobic respiration. The blood takes oxygen to all the cells. The blood has a substance called hemoglobin, which binds itself with oxygen to form oxyhemoglobin. Aerobic respiration. The word aerobic means in presence of oxygen. In aerobic respiration, the food molecules combine with oxygen and are then broken down into carbon dioxide and water to release energy. All food molecules contain carbon, hydrogen, and oxygen atoms. The process of oxidation converts the carbon to carbon dioxide and hydrogen to water. At the same time, this process sets free energy which the cell can use to drive other reactions. Aerobic respiration can be summed up by the following word equation: glucose plus oxygen gives carbon dioxide plus water plus energy. C6H12O6 plus 6O2 in presence of enzyme gives 6CO2 plus 6H2 plus energy. Although the energy produced is used for a variety of processes, some of it always appears as heat. In warm-blooded animals, birds and mammals, some of the heat released is retained to maintain their body temperature. In cold-blooded animals, reptiles and fish, the heat may build up for some time and allow the animals to move about faster. In plants, the heat is lost to the surroundings as soon as it is produced. Energy produced by aerobic respiration is more than the energy produced in anaerobic respiration. All the organisms which obtain energy by aerobic respiration cannot live without the ऑक्सीजन ऑफ एयर. ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में लंग कैपेसिटी और ब्रीथिंग रेट के बारे में पढ़ा था. वहां हमने पढ़ा था कि टाइडल वॉल्यूम जो होता है कि एक सिंगल स्ट्रोक में हम लोग कितना अमाउंट ऑफ एयर को अंदर ले रहे हैं, बॉडी के अंदर इनहेल कर रहे हैं, कितना एक्सेल कर रहे हैं. ठीक है, वो होता है टाइडल वॉल्यूम. तो जो है कि वो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक एडल्ट का टाइडल वॉल्यूम जो है 5 लीटर्स होता है मैक्सिमम, कि लंग्स मैक्सिमम वो 5 लीटर हवा एक सिंगल स्ट्रोक में वो ले सकता है और बाहर निकाल सकता है. ठीक है, पर जब वह रात में सो रहा होता है तो वह सिर्फ 500 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, बहुत कम हो जाता है. अब है कि जो सांस हम लोग लेते हैं उसमें हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोग छींकते हैं, ठीक है, तो जब है कि जब हम लोग ऐसे सांस लेते हैं तब क्या होता है कि हम लोग हमेशा अपने नोज से सांस लेना चाहिए, मुंह से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एयर जो है हमारे आसपास, जिस एयर को हम लोग अपने बॉडी के भीतर ले जा रहे हैं उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी रहता है, धुआं भी रहता है, पॉलन ग्रेन्स जो होता है प्लांट्स का वो भी रहता है. तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये सारा डस्ट पार्टिकल नोज में जो हेयर है वहां पे चिपक के रह जाता है, और वो हेयर जो वो फिल्टर के जैसा काम करता है, वो हवा से डस्ट पार्टिकल को निकाल देता है. ठीक है, अब जब हम लोग सांस ले रहे हैं नोज के थ्रू तो कई बार होता है कि वो पार्टिकल्स जो है हमारा जो नेजल कैविटी है, नाक के भीतर का जो लाइनिंग है, नेजल नाक के पीछे एक गड्ढे जैसा है नेजल कैविटी है, वहां पे जो लाइनिंग है माने जो उसका मसल्स का अंदरूनी कवर जो है, स्किन का अंदरूनी कवर, कई बार वहां पे हल्का सा इरिटेशन होता है. जो हवा हम लोग लेते हैं, सांस लेते हैं, उससे इरिटेशन होता है और इसके कारण हम लोग को छींक आती है. ठीक है, और जब हम लोग छींकते हैं तो हमारे जिस सांस को हम लोगों ने भीतर लिया था उसमें जो डस्ट का पार्टिकल्स होता है वो बाहर निकल आता है. ठीक है, वो नाक के हेयर में चिपक के रहता है तो वो बाहर निकल आता है जब हम लोग छींकते हैं, स्नीज करते हैं. ठीक है, तो जब भी हम लोग स्नीज करेंगे हम लोग को अपने नाक ढक के स्नीज करना चाहिए, हाँ, ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल जो भी गंदगी हमारे नाक से निकलेगी स्नीज करते समय दूसरे के लोगों के ऊपर नहीं चल जाए और दूसरे लोगों के ऊपर पड़े तो वो लोग उसको कहीं इनहेल नहीं कर ले, इसीलिए. ठीक है, इसी तरह स्मोकिंग करने से क्या होता है, वो हमारे लंग्स को बहुत बुरी तरह से डैमेज करता है सिगरेट पीने से या बीड़ी पीने से, और वो लंग कैंसर होता है उसके कारण. इसलिए स्मोकिंग बहुत ही इंजूरियस है हेल्थ के लिए, वो नहीं करना चाहिए. स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. सांस
सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, ये सब नहीं पीना चाहिए हम लोग को। अब दो तरह का रेस्पिरेशन होता है। हम लोग जानते हैं जब भी हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उस हवा में ऑक्सीजन जरूरी होना चाहिए ताकि हम सांस ले सके। पर कभी कभी जो वो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है रेस्पिरेशन में, वो विदाउट एयर भी होता है। ठीक है, तो दो तरीके का रेस्पिरेशन है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, तो एयर में ऑक्सीजन भी जाता है, वो ऑक्सीजन को हमारा ब्लड ले लेता है, हमारे लंग्स से आगे जब आता है वो ब्लड हम उस ऑक्सीजन को ले लेता है। ठीक है, कैसे लेता है? ब्लड में एक सब्सटेंस रहता है हेमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन के साथ अपने आप को बांध लेता है, अपने आप को बाइंड कर लेता है और एक सब्सटेंस बनाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। वो उसी के थ्रू जो है ऑक्सीजन हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाता है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा रेस्पिरेशन हो रहा है, ऐसा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है, फूड चेंज हो रहा है ग्लूकोज और एनर्जी में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसमें रिएक्शन में क्या दिखाया गया है कि फूड का जो ग्लूकोज है, हाँ, फूड का जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है, ये जो भी फूड का न्यूट्रिएंट पार्ट है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और एक एंजाइम का एक्शन हो रहा है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है? ये हमारे सेल्स के भीतर हो रहा है। जो ऑक्सीजन हम लोग सांस ले रहे हैं वो जाके जो खाना हमने खाया था उसके साथ रिएक्शन कर रहा है, खाना के न्यूट्रिएंट्स के साथ रिएक्शन करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा जो भी हम लोग फूड मॉलिक्यूल खाना खा रहे हैं उसको ऑक्सीजन की ही जरूरत है ताकि हम लोग उसमें से एनर्जी निकाल सके। अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ही ठीक से नहीं जाएगा तो उससे एनर्जी लेना हमारे बॉडी को मुश्किल हो जाएगा, खाने से एनर्जी लेना। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं रिएक्शन में क्या बताया गया है। ग्लूकोज जो है फूड में, जो हमारा फूड में का जो ग्लूकोज पार्ट है, ठीक है, फूड का जो न्यूट्रिएंट पार्ट है C6H12 वर्सेस ग्लूकोज पार्ट है, उसमें ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है। 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का रिएक्ट कर रहा है एंजाइम के प्रेजेंट में, और 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बना रहा है और 6 मॉलिक्यूल्स वाटर का बना रहा है। ठीक है, अभी आप बोलेंगे वाटर कहाँ से आया? तो ये सब जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो भी फूड में प्रेजेंट था वो सबसे निकल के बना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना। यही हमारे बॉडी से निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते समय निकलता है, वाटर वेपर निकलता है, एनर्जी हमारा बॉडी यूज करता है। ठीक है, तो जो है इस तरह ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, एनर्जी जो वो प्रोड्यूस किया उसको बहुत सारे तरीके से हमारा बॉडी उसको यूज करता है। ठीक है, एनर्जी से एक्टिविटी कराता है, बॉडी अपना सेल्स का काम कराता है, सब कुछ। पर जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जैसे हम लोग हैं, मैमल्स हैं, या जो चिड़िया सब है, वो लोग क्या करता है, वो जो एनर्जी रिलीज हुआ उससे थोड़ा थोड़ा अपने बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं। बॉडी हल्का ठीक रहना चाहिए, बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, तो उसको मेंटेन करने के लिए वो उस एनर्जी को यूज करते हैं। पर जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, जैसे सांप है, क्रोकोडाइल है, फिश है, रेप्टाइल सब जो है, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, वो लोग भी जब रेस्पिरेशन करेंगे वहां पे एनर्जी रिलीज होगा और थोड़ी देर हीट उनके बॉडी में भी आएगा। ठीक है, वो एनर्जी के कारण उनका बॉडी भी हीटअप होगा कुछ टाइम के लिए। ठीक है, और जब उनका बॉडी हीटअप होगा वो फास्टली मूव कर पाएंगे। ठीक है, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, रेप्टाइल और फिश। पर प्लांट्स में क्या है, जैसे ही उनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खाना से उनका एनर्जी बनता है, तुरंत वो जो हीट है, एनर्जी का जो हीट है, एनर्जी के साथ, एनर्जी मतलब तो हीट होगा ही उसके साथ, तो हीट जो है वो आसपास के सराउंडिंग में वह दे देता है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में यही होता है। अब एनारोबिक में भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है, पर एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो ज्यादा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के एनर्जी से। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जहाँ पे ऑक्सीजन को नहीं यूज करके रेस्पिरेशन किया जा रहा है वहां पे थोड़ा कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में जहाँ ऑक्सीजन को यूज करके किया जा रहा है एनर्जी प्रोड्यूस, वहां पे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स जिनको एनर्जी जो लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन करके लेते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, उन लोग अगर उनको जो एयर का ऑक्सीजन उनके बॉडी को नहीं मिलेगा तो वो जो है जीवित नहीं रह पाएंगे। डिफरेंस अब हम लोग पढ़ते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, कंबशन। In aerobic respiration, energy is given out gradually. In combustion, energy is given out suddenly. In aerobic respiration, energy is given out in the form that can be used by the organisms. In combustion, energy is given out in the form of heat and light.
In aerobic respiration, energy is released in steps and stored inside the body as ATP. In combustion, energy is released in single step and is not stored as ATP. In aerobic respiration, it occurs at the body temperature. In combustion, it occurs at high temperature. Anaerobic respiration. The organisms like yeast and some bacteria which carry out anaerobic respiration are known as anaerobes. Only a few living organisms carry out anaerobic respiration. अब है कि यहाँ पे आपको अंतर बताया गया है एरोबिक रेस्पिरेशन और कंबशन में। कंबशन जो है वो आग जलना एक तरीके से कहेंगे। कोई भी फ्यूल यूज हुआ, मान लीजिए गाड़ी के भीतर में पेट्रोल यूज हुआ है और जिसके कारण गाड़ी को एनर्जी मिल रहा है और गाड़ी आगे बढ़ रहा है तो वो कंबशन होगा। या हमने लकड़ियां जलाई हैं उसके कारण हीट और लाइट जो प्रोड्यूस हो रहा है तो वो भी कंबशन कहलाएगा। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, उसमें बॉडी के भीतर ऑक्सीजन के साथ फूड रिएक्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होता है क्योंकि धीरे धीरे फूड का ऑक्सीडेशन होता है। जबकि कंबशन में अगर हमने लकड़ियां चलाई हैं तुरंत में एनर्जी रिलीज होगा, तुरंत में गर्मी लगने लगेगी, हीट और लाइट मिलेगा। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी इस तरीके से मिलता है बॉडी में कि उसको बॉडी यूज कर सकता है, कोई प्राणी उसको ऑर्गेनिज्म अपना यूज कर सकता है अपने भीतर के बॉडी के एनर्जी को। जबकि कंबशन में वो एनर्जी किस फॉर्म में निकला है, हीट और लाइट के फॉर्म में निकला है। तो हम वो हीट और लाइट को ही एज ए यूज कर सकते हैं। या तो रूम को गर्म करने के लिए हीट यूज होगा, या लाइट से कंबशन में जो है लाइट रोशनी देने के लिए यूज होगा। तो एनर्जी जो एरोबिक रेस्पिरेशन में छोटे छोटे स्टेप्स में निकलता है और बॉडी में स्टोर होता है किसमें, एटीपी के फॉर्म में। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है एक तरह के मॉलिक्यूल के फॉर्म में, एक तरह के केमिकल के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होकर रहता है बॉडी में और बॉडी उसको धीरे धीरे यूज करता है। बॉडी फास्टिंग कर रहा है, बॉडी खाना नहीं ले रहा है, तब भी वही एनर्जी को यूज कर रहा है। जबकि कंबशन में एनर्जी तुरंत रिलीज होता है, आग जल रहा है तुरंत एनर्जी रिलीज होगा और उसको कहीं हम स्टोर नहीं कर सकेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जबकि कंबशन में तो नहीं। एरोबिक रेस्पिरेशन बॉडी टेम्परेचर पे ही होता है, ऐसा नहीं कि उसके लिए बहुत हमको अपने बॉडी को गर्म करना होगा। सिंपल बॉडी टेम्परेचर जो होगा, बॉडी का अपना जो तापमान होगा उसी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जबकि कंबशन में वो हाई टेम्परेचर पे होता है।